We are going live also, Nidhi. We are live on the Facebook now. Yes, good evening, friends. Good evening, audience. Yet we are again back with another episode of Let's Meet the Fighters, Pandemic Fighter Families. Among them, I would like to invite Nidhi Tyagi, who is a well known face on social media. I think we all know her because all digital marketing, lots of us have learned from her only. She's one of the pioneer in that, where I came in contact with her. And from 15th of April, her family also got caught into this COVID-19, and how she and her family handled it, went through whatever experience, she would be sharing all with us. Thank you, Nidhi ma'am, for coming on this show and sharing your views, your experience about all what you went through. Please welcome. Thank you, Ina. Thanks a lot for welcoming on this platform and giving me this opportunity to share. I really appreciate your initiative because today, when we are suffering from all these things around, there is so much negativity as well. So, what I see, all those news and everything, they are spreading just negativity. So, now you are coming with some positive talk. So, I really appreciate of this. It is going to help people a lot. Thank you. So, it started somewhere like 14th April, 13th, 14th April, when first my mother-in-law had some symptoms. Like she had fever, she had cough. Okay, it started with little symptom. So let me tell you how many people are there in my family. I have my like Devrani, my mother-in-law, my father-in-law, my husband, me, and my little daughter. She's 5.5 years, and my sister-in-law is also there. Okay, she stays at Ahmedabad, but at that time, unfortunately, we can say that she was here. She just came to spend some time with us, and she was here, and she's still here with her kid, 3 years kid. Okay, Okay. yeah, he's just 3 years. So we are so many people. We were so many people in the family at that time. So first, my mother-in-law experienced some symptoms, and then we quarantined her in our room. Like we just kept her in isolation. Okay, Okay. and we just stayed away with the kids and all. Then 3 4 days she had fever and all. She was taking medicine, so she got her blood test and all, and gradually after 2 days, like 2 days, I had also fever. I had 101 fever. Then my daughter also had fever, 101 fever next day. And they were my brother-in-law, he also had fever. So within 2 3 days we all started showing the symptoms. Okay. Yeah. So luckily my father-in-law and my husband were safe at that time, Mm-hmm. right? Then everybody else was showing the symptom. Even that kid, three years kid, he also had fever, Mm-hmm. right? My nanad, she also had. She did not show. See, let me tell you, it does. It is not necessary. It comes with the fever. Mm-hmm. It can come with another symptoms as well. So she had like upset stomach, headache, and tiredness. She never had fever, right? But when we got the test, she was positive, like she was COVID Okay. positive. So when did you took this RT-PC? Was it RT-PCR test done on your end? Okay. So we seen the doctor next day when we had the fever, because it was Sunday when I had the fever, and doctor was not available to see me, our family doctor. So next day we went to him, and I was unaware I have COVID or not, but luckily my doctor started to put me on the COVID medicine from the Okay. same day. He did not wait for the report. So it Mm. started me like ivermectin and all those things, HCQ and something. Okay, so and fever for maybe some paracetamol or something. So he had given all those medicine which was uh, required and COVID. So I was taking. I was unaware of that. I'm taking COVID medicine, but I started taking whatever he had suggested, and then.
he took a blood test, or blood test as well. So it was normal. Blood test was normal, like a reactive protein. If you have infection, so your reactive protein goes up. It was normal, Okay. right? So he said, then he was sure that I'm COVID positive, but he did not tell me. He just asked, just keep taking this uh, uh, medicines, and go for a test. So then we all went for a test, but because of search we really struggled to give the sample. We called so many people, please come and take sample. So many laboratories, they were not giving time, they were not coming. So for 3-4 days we were chasing them, right? So it was somewhere my sixth or seventh day maybe. I और ज़्यादा हालत बिगड़ रही थी, थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, बट आई वॉज, मुझे नहीं था कि कोविड है, आई वॉज जस्ट टेकिंग मेडिसिन. सो बट 6-7 डेज ये आपका जब स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे में थोड़े सिम्टम्स कम होते हैं, बस 7 to 10 डेज जो होता है दैट इज़ मोर क्रिटिकल. उसमें आपका पीक पर होता है चीज़, उसमें आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं. 7 to 10 डेज, समवेयर 10 डेज में फिर थोड़ी थोड़ी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, राइट? सो फिफ्थ 16th को मुझे सिम्टम आया था, 17th को मुझे फीवर आया था, एंड हम 21st को फिर हम रिपोर्ट करा पाए. सी, सो वी वेटेड फॉर सो लॉन्ग, एंड देन रिपोर्ट का रिजल्ट And the कब आता? reason for this wait was because you were not getting the chance anywhere. Nobody was responding. Yes, nobody was coming for the test, and हम भी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कहीं अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था टेस्ट के लिए. इट वाज सो सर्ज, इतना ज़्यादा उस टाइम पे पीक पर था कि कहीं भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था. सो 21st हो गई थी, तब तक मेडिसिन चल रही थी मेरी, एंड 21st तक उतना ज़्यादा नहीं था, फीवर था, निकल जा रहा था. बट उसके बाद जब 7th डे हुआ, जब पीक पर आई, तब मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस लगी, लाइक मैं उठ भी नहीं पा रही थी, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तब लगना शुरू हुए. तब मुझे लगा कि शायद कोविड हो सकता है. तो टेस्ट का रिजल्ट का वेट कर, 21st को हमने सैंपल दे दिया. माई मदर इन लॉ की जो हालत थी वो मुझसे थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कफ था, उनको फीवर ज़्यादा था, राइट? उनके ब्लड टेस्ट में टाइफाइड आया था, राइट? Okay. देन 26th को हमारी रिपोर्ट आई, लाइक 5 डेज के बाद. हमने 21st को दिया, 26 को, लाइक नाउ यू कैन से कि 16-17 को अगर हमारा सिम्टम आता है तो 10 दिन के बाद हमें रिपोर्ट मिली है, आफ्टर 10 डेज. सो वी हैव टू स्ट्रगल टू गेट रिपोर्ट. सैंपल देने के बाद फिर रिपोर्ट नहीं आ रही थी, 5 डेज के बाद रिपोर्ट आई. उसके बाद अब 10 डे ऑलरेडी हो चुका था. सो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, इज इट कोविड? सो व्हाट मेडिसिन यू आर गिविंग, इज इट कोविड मेडिसिन? He said, see, if you are positive or negative, you have to take this medicine and keep taking this. He knew it is COVID. So Right. I was just taking all those medicine. Do not miss any medicine, please. Never miss whatever is doctor suggesting. Keep taking them. राइट? डू नॉट डू सेल्फ मेडिकेशन की चलो ठीक है 5 दिए तो 4 ही ले लिए. कभी लगता है कि 6-7 मेडिसिन एक दिन में आपको लेनी है, सो यू जस्ट डिस्करेज योर सेल्फ, नहीं होगा, चलो 2-3 नहीं लेते हैं. आपको सारी मेडिसिन लेनी है. क्योंकि ये नॉर्मल वायरल नहीं है, ये कोरोना वायरस है. यस, उसमें आपको एंटीबायोटिक You need देते to be हैं, very स्टेरॉइड careful. देते हैं. स्टेरॉइड आपको इसलिए मिलता है कि वो लंग में इन्फेक्शन ना हो, अदरवाइज अगर इन्फेक्शन लंग में जाता है तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है. सो आपको जो भी डे 1 से डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ कीप टेकिंग स्टीम एंड ऑल, सब चीज़ जो भी प्रेस्क्राइब करें यू टेक. सो जब रिपोर्ट आई, सो माई रिपोर्ट वॉज पॉजिटिव. My sister-in-law's report was positive. My brother-in-law report was positive. Okay. और हस्बैंड एंड फादर इन लॉ की हमने नहीं करवाई थी, उन्होंने ही खुद ही नहीं चूज़ किया कराना. दे सेड वी आर ओके, सो हम नहीं करा रहे हैं. और बेटी की और वो जो किड 3 इयर्स तक, उनकी भी नहीं कराई थी, बिकॉज जब डॉक्टर, जो बेटी को वो डॉक्टर लेके गई थी द सेम डे व्हेन शी हैड दैट symptom. So doctor prescribed. She was also sure that it is COVID. She asked me कि घर में सब कैसे हैं, क्या हो रहा है. So she asked it is surely COVID. Like तो मैं डॉक्टर को भी वो symptoms थे COVID के. So 5 days की डॉक्टर ने मेडिसिन सजेस्ट की. I was giving her medicine. I was not sure if I'm COVID positive, but मैं उसको टेक केयर कर रही थी तब उस टाइम पे. और so एंड वी बोथ वर एट द सेम बोट. सो मुझे पता था उसको उतना रिस्क नहीं होगा बिकॉज उसको भी सिम्टम्स हैं. सो
5 days की मैंने कंप्लीट मेडिकेशन करवाई उसको, एंड विद इन 3rd डे उसका फीवर चला गया था, बट कफ उसको 10 days तक रहा था. सो मैंने उसको जैसे ही वो ठीक हुई मैंने उसको आइसोलेट कर दिया अलग, लाइक नॉट आइसोलेट, आई गॉट आइसोलेटेड बट शी वॉज विद हर फादर, दादा दादी उनके साथ थी. ओके. अच्छा, आइसोलेशन में वी वुड लाइक टू नो, आइसोलेशन इज अ वेरी जर्नलाइज्ड टर्म. जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिकॉज ओके. this is the right question to ask a person like you, where you had to deal with so many people in यस. such a small space. I'm sure यस. your house must be a 3 bedroom flat, लेकिन 3 bedroom में भी इतने सारे लोगों को accommodate करना is a very difficult task. जिन यस. जो दो दो तीन तीन लोग रह रहे हैं वो तो isolate हो सकते हैं. So I think it's a very valid question to ask from you. So I thought, let me just ask this. Yeah, How so did we you live in manage it? a we live in a combined family, it's a joint family. So in that time, it is just when you have kids, because kids को आप नहीं रोक सकते हो, they can move anywhere freely. Right. Okay, so Mm-hmm. before that, let me tell you, my mother-in-law's test report was negative, luckily, Okay. right? Yeah, she had symptoms. She had more symptoms than we had, but luckily her COVID report was negative. So my daughter was safe with her, and दादा दादी के साथ थी और अपने पापा के साथ थी. मेरा आइसोलेशन लाइक इट वाज, आई हैड वन रूम, राइट, जो हमारा रूम था उसको ही मैंने यूज़ किया. माई हस्बैंड एंड डॉटर को मैंने बोला कि आप बाहर ही, ऑब्वियसली दे स्टेड outside in living area and all those they managed, and I just kept in a room, right? उसमें attached आपका टॉयलेट बाथरूम होता है, so you use that, you do not go outside anywhere. So I stayed in the room. और रूम का आपको इंश्योर करना है कि वेंटिलेशन होना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन आपकी सप्लाई हो रही है. I सो think this is a very important input, निधि मैम, for all the our audience also, कि हमारे रूम में जब हम आइसोलेट हो रहे हैं वहां पे वेंटिलेशन जरूरी है. यस. स्पेशली आजकल के घरों में जहां पर हम एसी के आदी हो चुके हैं, यस. मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं. मैक्स टू मैक्स हम बाथरूम का एग्जॉस्ट चला देते हैं जो कंबाइंड वाला होता है. तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है जिस पर हमें डेफिनेटली हम सभी को हर यस. घर में ध्यान देना चाहिए, वेदर वी हैव कोविड और नॉट. यस. should यस. keep ourselves very much ventilated, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल वैसे भी अप होगा. Yes. So I choose. Luckily, I have a room where there is a good ventilation. So मेरा जो रूम का गेट है वो बाहर की तरफ रोड पर ही खुलता है. So I had that good oxygen supply and all. So I chose that room. So आपके लिए ventilation बहुत बहुत ज़रूरी है. Otherwise, sometimes you feel suffocated, right? आप AC obviously नहीं चला सकते हो. आप कुछ भी you just need to be on fan. So ventilation is really very must. Then second thing, uh, जो है आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको लोनली रहना है. ये प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए कि अदरवाइज आपके माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट्स गोइंग अराउंड. कभी ना कभी आपको न्यूज़ हर वक्त दिन में 3-4 न्यूज़ आपको मिल रही हैं. ही हैज़ लेफ्ट, ही हैज़ लेफ्ट, सो due to COVID, he has left due to COVID. You open up your Facebook, he has left due to COVID, RIP, and all those news, and you are sailing on the same boat, right? So obviously it is very very natural that you get negative thought that what will happen to me. So right. So if you stay in isolation and lonely, then you will think, oh God, what will happen to me, whether I will be able to recover or not. So ये नेगेटिव थॉट्स आने बहुत ही जायज़ हैं. सो अकेले नहीं रहना है, आइसोलेशन में रहना है, बट आप जैसे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर से. मैं अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी, और मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखती थी. कुछ भी न्यूज़, आई जस्ट कट ऑफ द न्यूज़, मैंने न्यूज़ बिल्कुल बंद कर दिया था. कोई भी न्यूज़ नहीं, सिर्फ नेगेटिव तो हो रहा है, हो ही रहा है, सो इसको हम रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट वी कैन स्प्रेड पॉजिटिविटी, वी कैन स्टे पॉजिटिव. Yes, सो बिकॉज पैनिक अटैक भी बहुत हो रहे थे उस टाइम पे, mm-hmm. एंड नेगेटिव सोचने से हम नेगेटिव फील करते हैं, हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है. Very राइट. true, very true. So I had seen some comedy shows, some good movies, right? So उसमें आपको कोई थ्रिलर मूवी ये सब नहीं देखनी है एंटरटेनमेंट के लिए, आपको कुछ कॉमेडी शोज इस तरह की ही कुछ आप शोज देख सकते हैं टू जस्ट कीप योरसेल्फ एंगेज्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स कि मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा, राइट? सो आई सजेस्ट यू टू जस्ट डू नॉट फील लोनली.
Please do not feel अच्छा lonely. निधि मैम, एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर दिमाग में आपसे जो पूछना चाहूंगी, जब आप बिल्कुल अकेले थे, आपने कॉमेडी शो भी देखे, सब कुछ अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि थोड़ी घबराहट हुई हो, लो फील किया हो? ऐसे मोमेंट्स भी आए आपके इस बिल्कुल। एक्सपीरियंस में? बिल्कुल आते हैं, बहुत नेचुरल है क्योंकि आप अकेले हो, आपकी फैमिली आपके साथ होते हुए भी साथ नहीं है क्योंकि वो आ नहीं सकते आपके पास, राइट? सो एंड चैलेंज ये होता है ना इना कि सोचो मेरे फादर इन लॉ, ही इज़ डूइंग डिशेज़, वो काम कर रहे हैं किचन में, ही नेवर डिड दैट, राइट? सो ही हैड टू, सो इतना करने के बाद सबकी केयर करनी, माय सिस्टर इन लॉ, माय मदर इन लॉ, किसी की भी तबीयत ठीक नहीं तो सबको केयर करना, माय हस्बैंड, ओनली माय हस्बैंड एंड फादर इन लॉ वर डूइंग दैट, राइट? तो स्टार्टिंग में थोड़ा मैंने किया, थोड़ा सिस्टर इन लॉ ने किया, बट फॉर 7-8 days इट वाज ऑल अप टू देम। सो इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि दे come and talk to us because they have to take care, they have to do all those things which they never did, right? They have to go to the kitchen, right, and to Right. take care of everyone. So Nidhi So ma'am, after experiencing this and the role of the males in during this time, आप बाकी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि घर में अगर जैसे आपके केस में मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स बीमार हुई, व्हाट आई कैन सी, एंड मेल्स all हैड female, all all female. females and males had to take the charge of the home. So Yes. what is the message for the other families, how they can handle this situation? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे घरों में मेल्स काम नहीं भी आता है, एंड ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस नाउ तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आदमियों को शायद काम शुरू से करने की आदत ही नहीं है. आई विल नॉट से दे डोंट हेल्प, बट द एनवायरमेंट इज सच वेयर दे आर नॉट गिवन द चांस टू वर्क. सो व्हाट Yes. मैसेज कैन बी गिवन टू देम हियर? क्या हम उनको क्या अवेयर कर सकते हैं कि ऐसे टाइम पर अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करो आप? ये सो हमारी सोसाइटी में होता है कि मेल डोमिनेंट है, मेल ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ये हमने ही सिखाया अपने किड्स को, बिकॉज अगर आपके गर्ल चाइल्ड है एंड बॉय चाइल्ड है, सो यू ऑलवेज प्रेफर टू ऑर्डर योर गर्ल चाइल्ड फॉर ऑल किचन वर्क, राइट? यू विल ऑलवेज डू दैट लाइफ लॉन्ग, सो बॉय चाइल्ड थिंग्स दैट आई एम नॉट लाइबल टू डू ऑल दोज थिंग्स, राइट? अगर पेरेंट्स को पानी लेना है तो वो अपने बेटी से बोलेंगे, बेटे से नहीं बोलेंगे, राइट? दिस इज रॉन्ग, राइट? सो आप अपने बेटे को भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी दो दैट यू हैव टू गो टू किचन, एंड उसको सब कुछ किचन का आपको सिखाना ही है, एटलीस्ट कभी अगर होता है ऐसा टाइम तो ही कैन टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, नहीं राइट? मैम, निधि मैम, ये तो आपने बताया कि लंबे टर्म में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन अब जैसे कोविड की प्रॉब्लम एकदम से आके पड़ती है फैमिली के ऊपर, तब वो बॉयज क्या कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स ओके, ओके, जिनको कभी काम की आदत ज्यादा नहीं है, हाँ, हाँ, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे कैन शेयर ऑफ द होम? राइट, ऑल्दो आई एम श्योर कि ऑडियंस को ये काफी जानकारी है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज है जिस पर हम एक बार रोशनी डाल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. राइट, राइट। सो उसमें देखो उनको फ्रूट्स भी लेकर आने थे, बहुत सारा काम करना था, ये सब आप कर ही सकते हो ऑब्वियसली, बट किचन में अगर कुछ करना है तो इतना होता था, जैसे मेरी मम्मी थोड़ा उठ पा रही हैं तो वो कर दे रही हैं थोड़ा सा, अगर सिस्टर इन लॉ थोड़ा उठ पा रही हैं तो वो कर दे रही हैं। स्टार्टिंग में तो मैं पॉजिटिव थी, कॉम्प्लिकेशन थी, तब भी 5-6 days मैंने किया था, राइट? समहाउ आई मैनेज्ड व्हेन रिपोर्ट वाज नॉट देयर, बिकॉज सभी को सिम्टम थे, सो वी वर नॉट एट दैट मच रिस्क, तो किया था। बट जब नहीं हो पाया, बिल्कुल हम में से किसी से नहीं हो पाया, देन उन लोगों ने चार्ज दिया, वो साथ में भी हेल्प कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा काम आप उनको बता सकते हैं कि आप इसको ऐसे करो, यू कैन जस्ट गाइड देम फॉर द किचन, राइट? इफ यू कैन नॉट गो, राइट? सो वो सब किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम दैट दे टुक केयर ऑफ अस एट दैट डिफिकल्ट टाइम, along with the job, because वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था मेरे हस्बैंड का, तो उसके साथ बहुत ध्यान रखा। सो ऐसे वेरी टाइम पे डिफिकल्ट. तो या रियली वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग फॉर। और कोई चैलेंजेस भी आए आपको अदर देन जो आपने आपके हस्बैंड ने हेल्प की आपकी, कोई मेडिसिन प्रोक्योर करने में, या कहीं बाहर अदर देन आरटीपीसीआर टेस्ट जो आपने बताया, उसमें तो आपको चैलेंज आया कि आपको जो रिपोर्ट मेरा ख्याल है दूसरे या तीसरे दिन मिल जानी चाहिए थी, वो आपको 5-5 6-6 दिन बाद मिली है, जिससे मेडिकेशन तो चलिए डॉक्टर ने बता दिया था, लेकिन घर में आई थिंक आप प्रिकॉशंस नहीं ले पाए, जिसकी वजह से यू टुक द चार्ज लेट, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो आपको मेडिसिन दे दी थी,
अंदाजे पे उन्हें आइडिया होता है, बट बीइंग अ फैमिली मेंबर आप लोगों को नहीं पता था, तो you isolated yourself after 6 days. So do you think that was a challenge, and how, what message would you like to give to the authorities also, because ये video will be viral everywhere, so you can speak about it as a patient, आपको क्या क्या तकलीफें हुई हैं इस ड्यूरेशन में, और क्या किन चीज़ों पर गवर्नमेंट को कैसे ध्यान रखना चाहिए? If you have any suggestion, you can definitely share it out. ये यस, एक चैलेंज वो था, और दूसरा चैलेंज मेडिकेशन जो डॉक्टर ने लिखी थी सो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, जो स्पेशली कोविड की मेडिकेशन थी, बट उसका हमें एक ऑल्टरनेटिव मिला, ऑल्टरनेटिव वाज आल्सो गुड, बट मेडिकेशन में थोड़ा प्रोक्योरमेंट में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम उस टाइम पे आ रही थी, वो मेडिकेशन डॉक्टर लिख रहा था वो मेडिसिन नहीं मिल रही थी। सो ये भी था, मे बी स्टॉक कर ली गई थी बिकॉज जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे सॉरी प्रिस्क्राइब कर रहे थे वही मेडिकेशन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो मे बी Okay. स्टॉकिंग, शायद स्टॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है उस टाइम पे। सो अथॉरिटी के को तो यही करना चाहिए कि इन चीज़ों के लिए अभी, बिकॉज हम कोविड से निकल रहे हैं, तो थोड़ा सब कुछ फोकस हटा करके मेडिकल पर ही फोकस करें, सप्लाई चेन को थोड़ा इम्प्रूव करें, सो दैट लोगों के पास एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ पहुँचे, राइट। टेस्ट के लिए अगर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, 10 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, तो थिंग्स आर अपसाइड डाउन, राइट। इतने दिन में हाँ, तो दे आर सेइंग कि ये फैल रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, क्योंकि अगर सिस्टम ही ठीक जगह पे नहीं है, तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो घर पे है वो क्या करेगा? वो रिपोर्ट सही टाइम पर ले सकता है, जब तक उसके हाथ में रिपोर्ट नहीं है वो आइसोलेशन अंदाजे पे नहीं ले सकता, क्योंकि उसे फैमिली भी जीनी है, अपनी यस, फैमिली मेंबर्स के साथ भी रहना है, काम भी करने हैं। आई एम श्योर यू मस्ट नॉट बी गोइंग आउट, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स को तो संक्रमित कर ही रहे हैं उस समय, if proper ऑब्वियसली, यस, medication यस, and proper reports are not there available on time. So I think government should take care of this. This charge cannot be given to the people. This has to be the whole sole responsibility एब्सोल्युटली, of the एब्सोल्युटली, governing bodies, those who are working in it, and the supply chain. Yes, definitely. And also I personally believe, tell me if I'm wrong Nidhi ma'am, इस समय विजिलेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक खबर कहीं से भी आए फोन की, there should be some numbers flashing that yes, if you report something, hoarding of oxygen, hoarding of medicines, wrong medicines, please connect with this government number, we will take action, which they haven't done anywhere. Whoever wants to do anything is just doing it for their own sake. इससे राइट, मुझे लगता है लोगों को भी ताकत मिलेगी कि बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, हमारे पास कोई है जिसको हम शिकायत कर सकते हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। अगर हमें कोई चीज गलत होती हुई दिख रही है, तो शायद कोई भी रिपोर्ट करता ही नहीं है, क्योंकि नहीं प्रोसीजर करते हैं, बहुत लंबा है। यस, अभी अगर हम रेमडेसिविर दवा की बात करें, उसको पाने के लिए हड़कंप मचा हुआ है चारों तरफ। गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर रही है कि एक मैसेज रेगुलर ब्रेकिंग न्यूज में या अलग अलग सोशल मीडिया पे डाला जाए कि यू विल गेट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिसोर्स, आपको बाहर नहीं मिल रहा है। पीपल आर रनिंग बिहाइंड इट, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं दे रहे हैं। और एंड आई डोंट नो व्हाई हॉस्पिटल्स आर नॉट गेटिंग दैट सप्लाई। एक प्रॉपर हॉस्पिटल को उसकी सप्लाई जरूर मिलनी चाहिए। अब वो यस, गवर्नमेंट का तरीका है कि उसको कैसे पहुंचाए वहां पर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल इन माय नियर एंड डियर वंस, आई फाउंड कि उनको रेमडेसिविर दवा नहीं मिल पा रही है। सो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 6-6 7-7 दिन में आ रही है। Who will check this? I think government has to check this. यस, They cannot blame anybody. And we are not talking about here central government, state government. I think each and every government should be held responsible for it. This is a pandemic, not a यस, simple small situation यस, which can be left on one or two leaders. They should leave all this and we should all they should work like come a team. together. They should come Yes, together. This is not a time to blame, to play the blame game. They yes, should come together. absolutely. At least Yes, save the lives of countrymen. After that, you can do anything, right? absolutely, absolutely. And if two pharma companies cannot prepare the medicine, I think rightly said by few people that that medicine formula should be given to the. There are so many pharma companies in our country. Currently, it's a pandemic. I think even a common man is speaking about it. Why the government is not thinking about it, I really don't know. We are just laymen and simple people. Now, coming back to you,
how many days it took you to completely come out of this situation? The entire family started on 14th, and when you were all out of it. Okay, so on 2nd May, when it was my 14th day, which is usually said by doctor that 14 days के अंदर आपका जो वायरस होता है वो डेड हो जाता है, Okay. राइट? तो 14 डेज में उसकी लाइफ एंड हो जाती है. सो आफ्टर 14 डेज यू फील बेटर, आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है. बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लाइक जितना आपको 6-7 डेज में, क्योंकि 7 to 10 डेज तो पीक पर होता है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन. बट जितना आपने बाकी के 10 डेज सफर किया है, उतना ही कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट 10 डेज भी मुझे फील हुआ. इनफैक्ट सम अदर थिंग्स लाइक ब्रेथलेसनेस मुझे नहीं हुई थी उस टाइम पे, बट अब मुझे होती है. यू कैन सी माई पेस ऑफ स्पीकिंग. मैं बहुत लाउडली, मतलब मेरे जो वॉल्यूम है वो भी कम है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगानी होती है तेज बोलने पे, और पेस भी थोड़ा स्लो है, राइट? तो बिकॉज एनर्जी उसमें ड्रेन हो रही है इवन Okay. ऑन स्पीकिंग. तो मैंने कॉल भी अगर पिक करती थी तो उससे बहुत टायर्ड हो जाती थी, राइट? मूव करने में, इनफैक्ट टू रीच टू किचन, उसमें टायर्ड हो जाना. तो आई वाज सो फीबल बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई थी. अभी भी आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, कि मैं बहुत ज्यादा वॉक नहीं कर पा रही हूँ. मेरा बीपी डाउन हो जाता है, लो हो जाता है. एंड लाइक ब्रेथलेसनेस फील होती है, लाइक यू गेट सम हाफ ब्रेथ बिफोर यू गेट योर फुल ब्रेथ, राइट? तो तो आप अपनी फुल ब्रेथ के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो निधि मैम? करंटली लॉट ऑफ वीडियोस वी हैव सीन कि प्राणायाम हमें करना है, ब्रीदिंग थोड़ी ज्यादा करनी है, एक प्रोनिंग है, हमें उल्टा लेट के हम थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग को बेटर कर सकते हैं. तो आर यू फॉलोइंग ऑल दोस प्रैक्टिसेस? ओके, लेट मी टेल यू, मैं योगा तो फ्रैंकली नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्लीप डिसऑर्डर अभी हो रहा है. कभी भी नींद आती है, कभी नहीं आती है, लेट नाइट, राइट? थोड़ा स्लीप में भी है, तो मैं मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ. फिर उसके बाद अभी क्या है कि मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिला, बिकॉज आई न्यू कि मेरे फादर इन लॉ एंड हस्बैंड ने दिन से हमें हेल्प कर रहे हैं. सो नाउ इट इज माई टर्न. तो जैसे ही मैं 14 डेज में आई फेल्ट समथिंग बेटर, सो मैं धीरे धीरे मूव करके किचन में गई, एंड आई जस्ट टुक चार्ज ऑफ किचन, राइट? स्लोली मूव करना, लाइक मैंने एक स्टूल लिया, वहां बैठ जाती थी, बैठ कर करती थी. बट आई डिड दैट, आई हैड टू दैट्स डू रियली दैट, बिकॉज वंडरफुल. उस टाइम पे मेरा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो मेरी देवर देवरानी है, ननद है, वो रिकवर कर रही थी. तो मैं जब उनकी भी वो करनी थी, हेल्प करनी थी, तो रिकवर दैम, तो उनको अच्छे से खाने को मिले, सब जो भी है टाइमली मिले. तो आई टुक दैट चार्ज इमीडिएटली ऑन 14 डे, जब मुझे थोड़ा सा मैं बेड से उठ पाई. तो ये भी चैलेंजिंग होता है कि आपको अपना भी केयर करना है, साथ साथ आपको दूसरों का भी उस टाइम पे ध्यान रखना है. व्हेन यू आर फीबल, आप भी फीबल हैं, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस पीपल. तो थोड़ा थोड़ा मैंने करना शुरू किया. एंड तो ये चैलेंजिंग अभी भी टाइम लग रहा है. लाइक आई कैन नॉट स्पीक मच, आई कैन नॉट वॉक मच, राइट? ब्रीदिंग के लिए जो आपने बोला, जब व्हेन आई फील दैट ब्रेथलेसनेस, so I sit upright, right? Because when you sit upright, your lungs capacity increases. आपको बिल्कुल सीधे बैठना है and wait for your full breath. So what I do, I just go outside in a fresh air, right? I sit upright for some time and then my breath comes. So, and I ensure that daily I sit in fresh air so that my oxygen. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनपुट फॉर आवर ऑडियंस कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है. इसमें ब्रेथलेसनेस एक इशू है इस वायरस में, तो इसको हमें अपनी हिम्मत से पार लगाना है. एंड Yes. मैम आपने ऑक्सीमीटर वगैरह भी यूज किया निधि मैम? Yes, yes, absolutely. ऑक्सीमीटर हमारे घर पे इट वाज रेडी. बीपी मशीन, ऑक्सीमीटर, प्लीज आप लोग एटलीस्ट ये 3 चीज रखिए: बीपी मशीन एंड ऑक्सीमीटर एंड शुगर का. हाँ, एक चीज मैंने मिस कर दिया, जब हम स्टेरॉइड लेते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो हमें नहीं पता था. तो माई मॉम वाज लाइक शुगर पेशेंट. ओके, सो स्टेरॉइड ले रहे थे, उनके शुगर लेवल बहुत ज्यादा शूट अप हो गया, राइट? जब शुगर मशीन से चेक किया तो वो मशीन में आया ही नहीं, इतना ज्यादा शूट अप हो गया. सो फिर आई वाज सो स्कैर्ड कि मुझे तो डर लग रहा था मम्मी का कि क्या होगा पता नहीं, राइट? तो लकीली शी आल्सो रिकवर्ड. शुगर पेशेंट, और मेरा भी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो आप जब भी आप प्लीज़ एक शुगर मशीन, एक बीपी मशीन, एक ऑक्सीमीटर एंड स्टीमर, ये प्लीज़ 4 चीज़ें अपने घर में अभी से ही ला कर रख लीजिएगा फॉर अ सेफर साइड. And keep checking your oxygen level like in 2-3 hours, and whenever you feel breathlessness, keep checking your oxygen level. और हाँ, आपको
पानी पीते रहना है, लिक्विड बहुत ज्यादा जाना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली देर इज ऑक्सीजन इन वाटर एज वेल। कीप टेकिंग लिक्विड, डाइट, रूट्स एंड ऑल। डाइट पर आपको बहुत ही ध्यान रखना। प्लस दीदी मैम थोड़ा सा डाइट भी बताइएगा कि आप लोगों ने किस टाइप की डाइट ली है एंड पोस्ट रिकवरी आप डाइट पे क्या ध्यान दे रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग एंड पोस्ट? during COVID, in the morning I used to take a coconut water or apple or papaya, right? और लंच डिनर में मैंने रेगुलर मील ही लिया, लाइक दाल रोटी, दलिया है या आपका राइस है, रेगुलर मील लेती थी। और I used to take warm water with lemon in a day, right? Once in a day, because lemon and warm water से जो आपका कफ होता है, कफ ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा। बिकॉज मॉर्निंग में जब हम उठते थे तो इतना कफ लगता था कि 1.5 hour यू जस्ट कफिंग एंड ऑल। तो उससे आपका बॉडी का पूरा जो एनर्जी था वो चला जाता था मॉर्निंग में। मॉर्निंग में मुझे बहुत परेशानी होती थी। एक डेट जब मैं उठती थी इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता था मेरे 24 hours में। आफ्टर गेटिंग बहुत ज्यादा कफ होता था, उससे आप में एनर्जी नहीं है, लाइक सो आपको लेमन वाटर विद लेमन वाटर आपको वार्म वाटर के साथ लेना है, लेमन डाल करके। and so coconut water आपको लेना है so that you get feel some energy, and regular meal you can take regular meal and please include fruits, right? water rich fruits आपको लेने हैं, like musk melon and जो भी आपको अच्छा लगता है आप water rich fruit, और ऑरेंज ले सकते हैं। हाँ, citrus fruits are recommended in this. सिट्रस फ्रूट ऑरेंज ले सकते हैं। एंड यस, नाइट में मैं लेती थी गोल्डन मिल्क, लाइक टर्मरिक विदाउट शुगर। शुगर प्लीज, शुगर इनटेक बिल्कुल आप अपना बंद कर दीजिएगा उस टाइम पे, बिकॉज स्टेरॉइड वैसे ही शुगर इंक्रीज कर रहा है, तो आपको शुगर नहीं लेना है। तो मैं टी भी बहुत कम शुगर का लेती थी, इनफैक्ट जो जगरी जगरी वाला होता है बहुत से लेती थी मैं शुगर। I think this is a good input that everybody should take at least a small cup of turmeric milk, warm यस, milk. टर्मरिक वार्म It should be विदाउट warm, lukewarm, or hot milk. What is? lukewarm. It can be lukewarm, right? So just add turmeric without sugar. You don't need sugar, but have that at least 150 ml because it is antibiotic and obviously it will keep you safe. Yeah, this will help Yeah. because a lot of people we have observed also had joint pain during this COVID. So I think this turmeric milk would help there and also. या सो अपनी जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल हमारी जो है, उन पे भी आप उनको डिनाई मत कीजिएगा। मैंने काढ़ा भी लिया था जिसमें आई थिंक सिनेमन पाउडर एंड वो सब का मिक्सचर था कुछ, राइट? तो आयुष काढ़ा इज द नेम। सो आई यूज्ड टू टेक दैट वंस इन अ डे। तो मेडिसिन तो आपको लेनी है, बट फ्रूट्स एंड आपकी जो देसी चीजें हैं, सी वो नुकसान नहीं करेंगे आपको, कुछ हार्मफुल नहीं होने वाला है, आपको कुछ बेनिफिट ही होगा। So do not ignore all those things with the medication, वो भी जरूरी है, so you can take that. अच्छा निधि मैम, एक चीज और बताइए, आप जब अगर पीछे मुड़कर देखती हैं उन 15 से 16 दिनों को अपने, तो उनमें कुछ चेंजेस आप लाना चाहेंगी कि अगर हम ये करते तो ये बेहतर होता? Introspection which you can Okay. guide to the audience and audience can take care of that. Yes, so it was like a roller coaster ride for me, because सब फैमिली का एक साथ ही हो जाना। बट हाँ, हम उसको चेंज ऐसे कर सकते थे कि when my mother-in-law had showing symptoms, so 3-4 days we waited, उनको आइसोलेट किया। हम लोग को टेस्ट कराना चाहिए था, हम सिम्टम तो नहीं थे बट शायद टेस्ट में आ जाता। बट अगेन 2-3 days सिम्टम आना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर के पास गए। तो आपको क्या करना है, जैसे ही कोई सिम्टम आपको लगे, घर में किसी को भी थोड़ा सा भी कफ हो, थोड़ा सा भी कोल्ड हो, और फीवर हो, या फिर स्टमक अपसेट हो, या हेडेक हो, आप प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। डू नॉट थिंक इट इज एनीथिंग एल्स, इट कैन बी कोविड, इट कैन बी कोविड एट दिस टाइम। सो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर के अपना RT-PCR तो आपने इमीडिएटली पूरी फैमिली का प्लीज करवा लीजिएगा। डू नॉट वेट फॉर एन आइसोलेशन, आप कीजिए अपना इमीडिएटली, राइट? तो शायद हो सकता था कि बाकी लोगों को नहीं होता अगर हम इमीडिएटली किसी के भी सिम्टम पे एक्शन लेते और हम लोग फैमिली में इतने ज्यादा साथ साथ ना उस टाइम पे रहे होते। Right, absolutely. And finally, last question. I won't take much of your time. I know you are very tired also because of this weakness and all related to COVID. Last question from you is, what things you would like to tell the audience? जिन चीजों का जो आपने बताई हैं उसके अलावा जो Yes. चीज ऑडियंस को हेल्प करेगी टू फाइट विद दिस इशू?
fight with COVID, क्योंकि COVID जैसा कि मैं समझ पाई हूँ और जैसा मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया था long time back when I had gone for the viral, he said everybody is going to get it. It can be severity can be different, or the person can be asymptomatic, quite possible कि आपको पता भी ना चले कि वो आपको हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे अछूते रह जाएंगे. It is going to touch each and every person on this planet Earth. So severity अलग अलग हो सकती है. So keeping that thing into mind, what things you would like to tell the audience कि आप इन चीजों का ध्यान रखिए, ये आपकी ढाल बनेंगी इस समय. Okay. Specific tools, Yes. unique ones. So first We thing have discussed a which lot I of things. believe, Ina, what I believe, the power of nature and the power of positivity. Like the more you stay with nature, like please AC, just abandon AC, just take a fresh air, start taking fresh air, and start eating fresh fruits, packaged foods and all. At least please for some time because it degrades your immunity. No packaged foods, just eat fresh fruits and fresh vegetables, right? And yes, have the dose of positivity daily. Please refrain from news channels. They are doing no good for us. No, they are Absolutely, just spreading absolutely. negativity, right? So when we are negative, we attract negative, right? If we are positive, we attract positive. So please just think of staying positive and eat healthy. I'm sure these two things will help you fight COVID and nothing else. Only these two things. With the medication, obviously. But if you are filled with these two things, it cannot harm you much. It cannot harm you. You will Absolutely. easily, and please do not fear. You will easily recover. You will easily recover if you are positive and you love Mother Nature. So you Yes, will your definitely. mother nature will protect you, undoubtedly. Absolutely. With this, we are coming to the end of the show. And I would also like to say thanks to Nidhi ma'am for sharing all the details and the experience so that audience can take help of this in handling their COVID cases. Wherever they find it difficult, they would definitely, all those who are watching this, would remember all these points what you have shared with them. And we wish you a speedy recovery for all your family members. And thank you so much for coming over here. And audience, last, I would like to say, keep your hope alive because hope takes you everywhere. Hope is something which will help you in regaining all your strength. We all are going through the pressure, stress, it is all around us. But try to spread positivity and also help people around in whatever way you can. It's not only money, it can be your few good words which can elevate the other person. आपकी एक फोन कॉल से सामने वाले के अंदर जान पड़ जाती है दोस्तों. तो फोन करना मत भूलिए, अपने दोस्तों से कनेक्टेड रहिए, 2 मिनट उनके लिए जीवन दान हो. So with this, we end this episode and thank you so much, Nidhi, for being part of this show. Thank you so much. Thank you, Ina. Thanks a lot. Bye bye. Bye.